Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, Mr. Aditya Shrivastava has topped the civil services examination and ranked first on all India basis. And naturally, it is a proud moment for every one of us. So, congratulations to Aditya Shrivastava for achieving this. So, today I was watching interview of his father, and he explained how Aditya could achieve this. The most important thing he emphasized was that he adopted self-study plan. The entire preparation he has done without help of any coaching center. And on this channel also I always emphasize importance of self-study. There is no substitute of self-study. So if you adopt the self-study, you can succeed. And for self-study, I am giving you daily timetable videos. I am placing the link of these videos in the description box. Start doing right away. This is a lesson from Aditya Shrivastava that not only he cracked but ranked first by adopting self-study module. Second important thing his father spelled out was the consistent and regular study. He was focused on his goal. He was serious to crack the examination, and he prepared well for the examination by keeping the focus. So focused preparation, consistent preparation is very important. The third important point he discussed was that NCERT books. He said most people say that people should read NCERT books from class 6 to class 12th, and these are very essential for every competition. May it be civil services, may it be banking, may it be any other examination. And you must have observed in all my videos, the initial videos that I have posted, I have always advised you to read school level books, because school level books help you to build your foundation, and to help you to have a substitute of school level books. I always recommend you topic test. So topic test is nothing but a substitute of school level books. So either you can adopt the school level books or the topic test, or use both. This will build your knowledge. In the case of Aditya Shrivastava, his father said since his mother spent a lot of time on him during his childhood, so his foundation was very strong in the school level. So he has not gone through all the NCERT books because foundation was strong of the earlier years. But in most of the cases, even school level foundation is weak, because sometimes we don't get the access to good level school. Sometimes teaching is not complete in our childhood schools. So that's why we have to fill that gap, and we have to read the school level books. There are a lot of videos that has emphasized importance of textbook. So I will place some video link in the description box, as well as I will place on the community, as well as on our Telegram channel. Watch those videos. That will help you in preparation of banking exam also, because every successful person's story teaches us something. And if we look at their interviews and able to collect some brownie points and start working on that, we can be successful. And the success story of Aditya Shrivastava, who is already IPS officer, and now he has cracked civil services with rank number 1, is an inspiring story. So congratulations to him, and it gives a moral boost to each one of you to prepare well. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सर्विसेज में रैंक नंबर 1 पाया है. उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. आज मैं उनके फादर का इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझने के हैं, सीखने के हैं, और हमें इंस्पिरेशन लेने के हैं. उसमें उनके फादर ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की कि जो आदित्य श्रीवास्तव है, उन्होंने सेल्फ स्टडी से ये गोल अचीव किया. उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से किया. और आपने देखा होगा कि इस चैनल पे मैं हमेशा आपको कहता हूँ सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए. सेल्फ स्टडी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है. डेली टाइम टेबल वीडियोज़ हम डालते हैं जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकें.
उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं डेली टाइम टेबल वीडियो, वो देखें। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी कंपटीशन में कामयाब होने का। कई लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, पर मेरा अपना मानना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो एक पॉइंट उन्होंने एम्फसाइज किया सेल्फ स्टडी। दूसरा पॉइंट उन्होंने एम्फसाइज किया कि एनसीईआरटी बुक्स, उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग कहते हैं क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। हालांकि आदित्य ने कम पढ़ी क्योंकि उनकी स्कूल लेवल फाउंडेशन बहुत अच्छी थी, मगर उन्होंने कहा कि फिर भी कुछ किताबें एनसीईआरटी की उन्होंने पढ़ी। आपने देखा होगा अपने चैनल पे मैं निरंतर आपको ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए स्कूल लेवल की। उससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों की स्कूल लेवल की नॉलेज वीक होती है। हालांकि आदित्य श्रीवास्तव की मदद, उनकी मदर ने बहुत मेहनत की, उनकी माँ ने बहुत मेहनत की और उनका स्कूल लेवल फाउंडेशन बहुत अच्छा था। उनके पिता ने भी उनको स्कूल लेवल में पढ़ाया स्कूल के अलावा, और स्कूल की भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की जहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली। पर ऐसा मौका हर बच्चे को नहीं मिलता। काफ़ी लोगों का स्कूल लेवल एजुकेशन बहुत वीक होता है। कुछ ऐसे स्कूलों में पढ़े होते हैं जहाँ पढ़ाई नहीं हुई होती। तो इसलिए यदि मैं स्कूल लेवल की कमी दूर कर लूँ, मैं स्कूल लेवल की बुक्स पढ़ लूँ दोबारा, तो मेरा अच्छा लेवल बन जाता है। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे। कुछ वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आज कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, उसको भी ज़रूर देखें। तो पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। दूसरी चीज़ है सेल्फ स्टडी, और तीसरी चीज़ है स्कूल लेवल की फाउंडेशन बिल्ड करना। अब इसमें आप स्कूल लेवल बुक्स पढ़ लें या टॉपिक टेस्ट कर लें। टॉपिक टेस्ट भी स्कूल लेवल बुक्स का सब्स्टिट्यूट है। आप खाली टॉपिक टेस्ट भी कर सकते हैं, स्कूल लेवल बुक्स भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर निरंतर इम्प्रूवमेंट आएगी और आप निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है उससे हमें ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने उसको कैसे अचीव किया, एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को करके सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकता है, तो हम बैंक लेवल एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही सकते हैं ना, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें। तो आप कंसिस्टेंट हो जाइए, परसिस्टेंट हो जाइए, सेल्फ स्टडी पे जोर दीजिए, और स्कूल लेवल किताबों से जो आपकी फाउंडेशन में कमी है उसको भरिए। और उसके लिए टॉपिक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है अपनी फाउंडेशन को फिल करने के लिए। जिस भी कैंडिडेट की फाउंडेशन अच्छी होगी, मजबूत होगी, उतनी उसको मदद मिलेगी किसी कंपटीशन को पार करने की। तो एक बार पुनः मैं आदित्य श्रीवास्तव को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनके इस अचीवमेंट के ऊपर। और आप सभी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी जुट जाएं और अपनी कामयाबी को पा के रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।